Okay, so today we are going to start with question number 18th. 16, 17 आपको assignment दिया था. Few of you have sent and others are yet to send. So for 18th question, from a tap 10-meter high, drops fall at regular interval. ये important word है regular interval. तो हमारे पास एक टैप है, मतलब एक नल है. इस नल में से the drops are falling at a regular interval and this is basically 10-meter high. तो distance from the ground is 10 meter, ऐसा बोला है हम लोगों ने. When the first drop reaches the ground, let us say पहला drop जब ground से यहाँ पे it reaches ground, the fifth drop is about to leave the tap. तो तभी fifth जो drop होगा, that is about to leave the tap, so it is somewhere here, right? Find the separation between second and third. Interesting question. So this is second drop over here, second drop over here, second, third, fourth and fifth. ऐसा है. This is first, this is second, this is third, this is fourth and fifth. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, आपके पास जो टैप है वो 10 मीटर हाइट पे है. जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा, तब फिफ्थ ड्रॉप जो है इट इज लिविंग द टैप. ओके, देन हमको पूछा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप. तो बहुत इजी है. Let us first calculate how much is the time required for any drop to reach ground. Any drop, पहला drop भी बोल सकते हो, right? So let us just solve it that way. So time required to reach the ground. And how do you find this? Is very simple. S equal to ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर. कोई भी ड्रॉप होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. तो S is 10 meter, U is 0, half A is G because it is falling down because of gravity, T square, right? Good. तो you just have to solve this. तो आपको मिल जाएगा T square equal to 2 into 10 by G, मतलब 200 by 10 that is 20. तो T square is basically T square is equal to 200 by G की वैल्यू 10 ले लिया अगर. If you take the value of G to be 10, then in that case you get T is equal to 20, right? No, I have just written here wrong thing. ऊपर 200 में 20 आएगा, 20 by G. Yeah, so T square equal to 20 by 10, that is 2. So T is under root of 2. So under root of 2 हमारे पास मिल गया टाइम. Remember, this time is nothing but the time taken to reach the ground by any drop. That is important thing. ये आपको पता होना चाहिए, right? दूसरी चीज ये है कि the time interval between any two consecutive drops is same, क्योंकि उन्होंने बोला है these are falling at regular interval. Okay, so time interval between two consecutive drops या subsequent drops या फिर adjacent drop बोल सकते हो. So time interval between adjacent drops is T by 4. T by 4 क्यों आया? 5 ड्रॉप है, 5 ड्रॉप है, तो टोटल टाइम इंटरवल कितने होंगे? 4. ये एक टाइम इंटरवल, ये दूसरा टाइम इंटरवल, ये तीसरा टाइम इंटरवल, ये चौथा टाइम इंटरवल. तो किसी भी दो ड्रॉप्स में इन टर्म्स ऑफ टाइम डिफरेंस कितना है? दैट इज T by 4. T कितना है? √2. तो √2 by 4, राइट? So this is nothing but, इसको मैं लिख सकता हूँ, I can write down this as, I'll denote it by delta T, √2 upon 2 into 2, and 2 into 2 is again √2 into √2. तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, कैंसल कैंसल, तो 1 upon 2 √2, 1 upon 2 √2 सेकेंड, राइट? अब द आइडिया इज वेरी क्लियर. हमको करना क्या है? हमको सेकंड और थर्ड ड्रॉप का सेपरेशन निकालना है. हम लोगों ने पहले ये देख लिया कि एनी ड्रॉप, पहला ड्रॉप ही मान लो, पहले ड्रॉप को टैप से ग्राउंड तक आने के लिए टाइम कितना लगा? √2 सेकेंड.
राइट। देन किसी भी दो एडजेसेंट ड्रॉप में टाइम इंटरवल कितना होगा, दैट इज t/4। क्यों? क्योंकि टोटल 5 ड्रॉप है तो 4 इंटरवल बनेंगे। 1 और 2 के बीच में एक इंटरवल, 2 और 3 के बीच में एक इंटरवल, 3 और 4 के बीच में एक इंटरवल, 4 और 5 के बीच में भी एक इंटरवल होगा। राइट, सो वी हैव दिस डेल्टा t is 1/2 सेकेंड। ओके, देन if you know this, तो distance x2 of the second drop we can find out। हमको पता है therefore distance x2 of second drop from the tap is given by, ऑलरेडी हम लोग यही इक्वेशन यूज करने वाले हैं, s equal to ut plus 1/2 at square। तो x2 मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस ड्रॉप x2 सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द टैप, और ये x3 ये भी फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों समझेगा आगे, क्योंकि आपको पूछा ही हुआ है ना सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। x2 क्या आएगा, ut plus 1/2 at square, u तो जीरो ही है, राइट, तो हाफ gt स्क्वायर। टाइम इंटरवल कितना आएगा second drop के लिए, that is important। okay, you need to understand this, that for second drop you have to find out time interval। okay, तो फिफ्थ और फोर्थ में जो टाइम इंटरवल है दैट इज 1/2√2, मैंने ऑलरेडी बताया, टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव। ओके, राइट, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और अदरवाइज आई ड्रॉ अ सेपरेट डायग्राम ओवर हियर, समझने के लिए इजी होगा। फिफ्थ ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप एंड फर्स्ट ड्रॉप। पहले दो में टाइम इंटरवल है 1/2√2। एक्चुअली किसी भी दो कंसेक्यूटिव में एक के बाद एक में 1/2√2 है, तो ये भी है 1/2√2 है, ये भी 1/2√2 है, एंड सो ऑन। करेक्ट, राइट। तो x2 मतलब डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम द टैप, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द फिफ्थ ड्रॉप टू दैट ऑफ सेकेंड ड्रॉप। तो टाइम इंटरवल कितना होगा, 1/√2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1/2√2, मतलब 3/2√2। So this time interval between fifth and second drop is 3/2√2 सेकेंड, और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u जीरो था। ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, तो ये आएगा 1/2g। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अच्छा है इसका। ओके, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट half g, 3 square is 9, 2 square is 4 and √2 square is again 2। इसको सॉल्व करोगे तो that will turn out to be 9g/16, right? Good enough। तो फिलहाल इसको ऐसा रहने दो, 944 because this was 2 here, this is 8 into 2 16, that is correct। Similarly, distance of the third drop, distance x3 of third drop फ्रॉम द टैप, फ्रॉम द टैप बोल रहा हूँ मतलब फ्रॉम द फिफ्थ ड्रॉप, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा तो फिफ्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, मतलब फिफ्थ ड्रॉप अभी टैप के अंदर ही है। तो व्हेन आई से फ्रॉम द टैप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द फिफ्थ ड्रॉप। सो दैट इज गिवन बाय x3, अगेन u इज 0 हाफ g। अभी देखो जैसे हम लोगों ने फिफ्थ और सेकेंड ड्रॉप मतलब टैप और सेकेंड ड्रॉप में टाइम इंटरवल निकाला था, वैसे फिफ्थ और थर्ड ड्रॉप में भी टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। फिफ्थ एंड थर्ड ड्रॉप में जो टाइम इंटरवल आएगा, सो मीनिंग टू से दिस मच, फिफ्थ एंड थर्ड ड्रॉप में कितना आएगा, 2/2√2। तो 2/2√2 का स्क्वायर, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड ड्रॉप, कैंसल कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा g/2 और 1/√2 का स्क्वायर, और एक तो g/4 आ जाएगा, ये g/4 आ गया। हमें क्या चाहिए था, सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, तो बस x2 माइनस x3 करना है। सो सेपरेशन बिटवीन second and third drop is
x2 माइनस x3, x2 हमने फाइंड करके रखा है 9g/16 और ये है g/4। तो वेरी सिंपल थिंग, इसको सिर्फ आप 9g/16 माइनस 4g/16 से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेकेंड टर्म को, तो 9 माइनस 4 इज 5g/16, 5g/16, and you know what is basically 5g, g is 10, right, more or less। 50/16 कर लो फिर, तो 50/16 आ गया। अगर g की वैल्यू आपने 10 ली तो 50/16 इज 25/8। 25/8 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो दैट इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं वापस लॉजिक बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। दिस क्वेश्चन हैज बेसिकली वेरी सिंपल सेंस, बहुत लॉजिकल सेंस है इसका। ओके तो वापस क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं वापस एक बार आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, लेट मी यूज अ न्यू पेज, दैट इज बेटर थिंग। तो नए पेज पे ही कर लेंगे, बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक टैप है, टैप मतलब नल है, इसका हाइट है ग्राउंड से 10 मीटर, 10 मीटर का हाइट है। जब पहला ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा तब फिफ्थ ड्रॉप टैप से जस्ट निकल रहा है, तो फोर्थ यहाँ पे होगा, थर्ड समवेयर हियर होगा और सेकंड ड्रॉप समवेयर हियर होगा। ऐसा हमको पूछा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से टैप से सेकंड ड्रॉप तक x2 डिस्टेंस है, टैप से मतलब फिफ्थ ड्रॉप से थर्ड ड्रॉप तक x3 डिस्टेंस है। मतलब हमको फाइंड करना है x2 माइनस x3, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट। इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप्स में, एडजेसेंट ड्रॉप में टाइम इंटरवल कितना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इक्वल इंटरवल पे ड्रॉप्स बाहर निकल रही है। मतलब अभी एक ड्रॉप निकला, एक सेकंड के बाद और, एक सेकंड के बाद और, एक सेकंड के बाद और। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए 1 सेकंड यूज कर रहा हूँ, हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले व्हाट आई कैन डू इज, पहला ड्रॉप जब ग्राउंड पे पहुंचा तो उसको कितना टाइम लग गया, सबसे पहले हमको वो फाइंड करना है। मतलब यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। s हमारे पास 10 है, u 0 है, क्योंकि जब ड्रॉप ये नल से बाहर निकला होगा तो रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ उसका मोशन। g/2 टी स्क्वेयर। तो मुझे मिल गया यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 20/g एंड g की वैल्यू 10 लेते हैं तो 20/10 मतलब t मिल गया 2 हम लोगों को, मतलब t मिल गया √2। तो पहले ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने के लिए √2 सेकेंड टाइम लग गया। अब यूजिंग दिस t हम लोग फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव। कैसे? अगर मैं टोटल टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, t है ना, टोटल टाइम इंटरवल t है ना, फिफ्थ मतलब नल से लेके तो फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड तक का टाइम कितना, t। तो हर एक ड्रॉप में, एडजेसेंट ड्रॉप में टाइम कितना, ये t/4 होगा, ये t/4 होगा, ये t/4 होगा और ये भी t/4 होगा। मतलब टोटल टाइम कितना आ गया, t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, मतलब कितना, t, क्योंकि 4 टाइम्स आपने t/4 ऐड किया है तो t। ओके, इसका मतलब सेकेंड ड्रॉप का टाइम इंटरवल फ्रॉम द फिफ्थ ड्रॉप फ्रॉम द टैप इज, therefore पहले लिख देता हूँ, therefore टाइम इंटरवल between adjacent drops is, between adjacent drops is t/4। therefore time taken for second drop to reach x2 is, हाँ कितना टाइम लगा x2 तक पहुंचने के लिए, कितने टाइम इंटरवल गए x2 तक पहुंचने के लिए, गिनो।
3 टाइम्स ऑफ t4 t/4, क्योंकि t/4 एक बार, t/4 दो बार और t/4 तीन बार, क्योंकि x2 सेकेंड ड्रॉप जहाँ पे है, x2 डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों को बेसिकली t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 टाइम लगने वाला है, मतलब ड्रॉप को लगने वाला है हम लोगों को, मतलब ड्रॉप को लगने वाला है। ओके, सो दैट इज 3t/4। मैं इसको चाहिए तो नाम t2 दे देता हूँ, डजेंट मैटर। ओके, तो 3/√2, 3 × √2/4 ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो x2 मैं लिख सकता हूँ, व्हाट इज x2, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 2 और 2। x2 फाइंड करना है, u तो 0 था, हाफ जी टी स्क्वायर, और t2 हमारे पास 3√2/4 का स्क्वायर है। तो x2 मुझे मिल गया g/2, 6 × 2 है ना, सॉरी 9 × 2, 3 का स्क्वायर 9 × 18, 18/4। तो ये सॉल्व हो सकता है, ये 9/4 आएगा। तो मुझे x2 मिल गया 9g/4। सिमिलरली आप थर्ड ड्रॉप के लिए भी कर सकते हो। टाइम टेकन फॉर थर्ड ड्रॉप to reach where it is, to reach where it is at x3 is, to reach x3 is, तो कितना टाइम लगा उसको थर्ड ड्रॉप को x3 तक पहुंचने के लिए, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर 5 to 3 का डिस्टेंस, दैट इज in terms of time you will have 2 times of t/4, so that is t/2, that is √2/2. Therefore x3 distance can be found out again using ut plus half at square। वापस से ut is 0, हाफ a की जगह पे g डालोगे, t3 की जगह पे √2/2 का स्क्वायर डालोगे, तो x3 मिलेगा g/2, 2/4, कैंसल कैंसल, मतलब g/4। इक्वेशन नंबर 1 x2 देता है, इक्वेशन नंबर 2 x3 देता है। देयरफॉर सेपरेशन बिटवीन second and third drop is x2 minus x3, that is 9g/4 minus g/4, that is, you can just solve this, you will just solve this, and you should get 8g/4, that is g/2, that is 25/2, something like this। ओके, कैलकुलेशंस मे बी रॉन्ग समवेयर, क्योंकि पहले 25/8 आया है, तो वो एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोगों को कहाँ गलती हुई, बट ओवरऑल इट इज करेक्ट, अप्रोच इज करेक्ट, व्हाट आई एम सेइंग इज अप्रोच इज करेक्ट। कहाँ पे कुछ मैंने मिस कर दिया होगा, दैट इज फाइन। तो g/2 3 स्क्वायर, इसका नीचे 4 का स्क्वायर 16 करना चाहिए था, मैंने वो 16 नहीं किया, तो दैट इज 9g/16, दैट इज ओके। तो यहाँ पे भी वही आएगा, यहाँ पे आप 16 लिखोगे और आप ओवरऑल इसको सॉल्व करोगे, एंड ओवरऑल इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 25/8 आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। So let me just delete this part from here, deleted. So this is going to be finally 25/8 after substituting value for g. 25/8 is not in the option, so you cannot, I mean, then you have to take option number D, which is none. तो easy question था, बहुत ही easy question था। Let's move to next question. Question number 19 मैंने फिलहाल रखा है because there is some data missing in that question, तो मैं वो बाद में करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ऑलरेडी हमारा हुआ है, वो रिपीट हुआ है प्रिंटिंग में क्वेश्चन, तो दैट इज वाई विल नॉट टेक दैट एंड विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 21 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 21, a player throws a ball upward with an initial velocity of 29.4 meter per second. So there's a player who is throwing a ball upwards with initial velocity u1 equal to 29.4 meter per second. The height to which the ball rises and the time taken to reach the player's hand r, मतलब बॉल ऊपर जाएगा तो what is this height h1, और वापस से नीचे प्लेयर के हाथ में आएगा, मतलब इट इज सिंपल, मतलब इट इज जस्ट like the case of I am throwing a ball and then
ball is reaching maximum height, so this height, and it is again coming back. तो टोटल टाइम होगा ऊपर जाने के लिए कितना टाइम, वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम. तो टोटल टाइम इज टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ descent, एंड टोटल हाइट इज जस्ट दिस हाइट टू रीच मैक्सिमम. तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो बहुत ही सिंपल केस है. कैसे, how can you find out maximum height? I can use v square equal to u square plus 2as. Why? Because if at the maximum height we know final velocity is 0. क्यों? क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद द ऑब्जेक्ट हैज टू स्टॉप एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज 0, राइट. सो v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 2a1s, या फिर फिलहाल प्लस लिखो, बाद में माइनस करेंगे. v1 is 0, u1 square minus 2a1, a1 is minus g. Why a1 is minus g? Because it is the object is going against the gravity, so a1 equal to minus g आएगा. s1 is h1, and that is what we have to find basically, right? So from this I will get h1 equal to u1 square by 2g. So I will get h1 equal to u1 मतलब 29.4 का square upon 2 into 9.8, value of g is that. तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा डेफिनेटली. रफली सॉल्व करना है तो 30 स्क्वायर इज 900, 900 अपॉन 20, 900 बाई 20, 900 बाई 20 इज रफली 44 पॉइंट समथिंग. तो हाइट मिल गया आपको 44.1 मीटर. मतलब क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि किसी और ऑप्शन में 44.1 मीटर नहीं है. तो 29.4 के स्क्वायर को मैंने 30 स्क्वायर लिख दिया, मतलब 900 हो गया ऊपर न्यूमरेटर में. सो न्यूमरेटर इज 900, नीचे है 2 इंटू 900, मतलब 2 इंटू 10 लिख लिया तो 20 हो गया. 900 by 20 is 45. तो 45 से नियर अबाउट सिर्फ एक ही आंसर था 44.1, और ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया. बट स्टिल इफ यू वांट टू फाइंड आउट टाइम, वो भी फाइंड कर सकते हो आप. हाउ कैन यू फाइंड आउट टाइम? इट इज वेरी सिंपल. इफ आई यूज v equal to u plus at, so I can write v1 equal to u1 plus a1 t1. So t1 is the time taken for the object, for the ball to reach maximum height. That is the time taken, right? So time taken is to go to maximum height t1. तो v1 तो 0 होगा, u1 29.4 दिया है, a1 तो माइनस g है, t1. तो t1 आ गया 29.4 अपॉन g, and the value of g we already know is 9.8. 1 जा 3 जा, so t1 is 3 second. That means therefore the time taken to reach maximum height, the time taken to reach maximum height is 3 seconds. Okay, therefore total time to reach the hand of player is total time t is 2 times of t1, मतलब time of ascent ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना नीचे आने में लगेगा. तो 2 into 3 that is 6 सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर बी कंफर्म हो गया. वैसे वो तो सिर्फ हाइट फाइंड करने के बाद भी हो गया था, राइट. सो इजी क्वेश्चन था ये. Then next question 22. A balloonist is ascending at a velocity of 12 meter per second with acceleration of 2 meter per second square. A packet is dropped from it when it is at a height of 65 meter from the ground. Time taken by the packet to reach the ground. देखो ये क्वेश्चन इंटेंशनली थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया गया है. बलूनिस्ट मतलब सिंपल चीज है. ये एक ऐसा बलून वाला, you have something like this. There is a kind of हॉट एयर डालते हैं बलून में और बलून ऊपर जाता है. तो बलूनिस्ट मतलब इसके अंदर जो बैठा होगा, दैट इज बलूनिस्ट. इट इज असेंडिंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बलूनिस्ट इज 12 मीटर पर सेकेंड. द बलूनिस्ट इज ड्रॉपिंग अ पैकेट. ओके, देखो ड्रॉपिंग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन उस केस में किस केस में 0 होता है? अगर if we are dropping a packet from top of a building, हम तो रेस्ट में है, बिल्डिंग में रेस्ट में है, अभी ड्रॉप करें तो u इक्वल टू 0.
पर इस केस में बलूनिस्ट जिस बलून में है वो ऊपर जा रहा है, तो you already know that u is 12 meter per second. Now the height between these two distance is 65 meter. How much time it will need? तो बहुत simple है. How much time it will need? We have to use s equal to ut plus 1/2 gt square. s is 65. u आपको -12 लिखना पड़ेगा. -12 क्यों लिखोगे? मैंने ऑलरेडी बताया है that the motion of the packet is against the motion of the balloon. तो u की वैल्यू नेगेटिव लिखो, दोनों में से एक नेगेटिव होगा, राइट? ओके, तो एनीवेज देन प्लस दिस इज g वैल्यू इज 10/2 t स्क्वायर, तो ये आ गया 5. तो आपको मिल जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 65 इक्वल टू 0. तो आपको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. एंड यू मस्ट नो टू नंबर्स, या फिर अगर आपको नंबर्स नहीं पता तो फिर व्हाट यू कैन डू इज, आपको पता है मैंने पहले ही बताया था आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे लिखते हो. इफ यू हैव अ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, द रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So now we have a equation which is quadratic in t. So t will be equal to minus b already -12 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर -4 इंटू a वैल्यू इज 5 इंटू c वैल्यू इज -65 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a. इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर इज 144, 4 5 20, 60/2 130, तो ये आ जाएगा आपका 1300 प्लस 1300 अपॉन 10. तो 12 प्लस, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 1300 दैट इज अंडर रूट ऑफ 1444 इज डेफिनेटली बिगर देन 12. ओके, तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो वी डोंट टेक नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टाइम, इसलिए मैंने सिर्फ प्लस वैल्यू यूज किया है यहाँ पे. ओके, तो अंडर रूट ऑफ 1444 दिस लाइक 1444 इज 38, तो 12 प्लस 38/10 मतलब 50/10 मतलब 5 seconds. तो आंसर इज 5 seconds. First of all, option number B is a nonsense option because time can never be negative. So that is why it is nonsense. Anyways, right. तो सिंपल था, s equal to ut plus 1/2 at square यूज करना है. That's it. That's it. s 65 u minus 12 सब पता है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हमारा टाइम t में, उसको सॉल्व करना है and you get 5 seconds as the answer. It's pretty simple thing. Next question. Engine of a vehicle can give it an acceleration of 1 meter per second square and its brakes can retard it at 3 meter per second square. The minimum time in which the vehicle can make a journey between stations A and B having a distance of 1200 meter is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, तो बेसिकली मान लो हमको A से B स्टेशन के बीच में जर्नी करना है. मैं मान लेता हूं कि ये A स्टेशन है यहाँ पे और वी हैव अ B स्टेशन ओवर हियर, राइट. पहले गाड़ी एक्सेलरेट होगा एंड डेफिनेटली वी आर ड्राइंग वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम. फर्स्ट द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, राइट. एक्सेलरेशन होगा ना, बिकॉज आपको अगर एक पोजीशन से एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है गाड़ी पे बैठे, तो गाड़ी का स्पीड चेंज करना पड़ेगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जैसे एक्सेलरेशन, फिर आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो एंड डी एक्सेलरेशन इज मोर देन एक्सेलरेशन, क्योंकि डी एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, गुड. मैं मान लेता हूं कि द टाइम फॉर विच द व्हीकल वाज एक्सेलरेटिंग इज, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा.
समथिंग लाइक दिस. गुड. तो हम मान लेते हैं कि टाइम t1 is the time for which there was acceleration and time 2 was the time for which there was retardation, right? तो हमको पता है कि acceleration क्या होता है. What is acceleration? So you already know what is acceleration. By the way, acceleration is very simple. A is v by t. Definitely आप v2 minus v1 upon t2 minus t1 कर सकते हो. Definitely. फिर मैं इसको बोलूंगा this value is v2. हाँ, और यहाँ पे जो a पे था वो तो 0 था. फिर टाइम, यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू है ये t1 है, और मतलब बेसिकली यू डू दैट. तो हम लोग वो नहीं कर रहे. मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज अननेसेसरी थिंग्स. तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर कितने टाइम के लिए एक्सेलेरेशन था, t1 के लिए था. गुड. दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो आपको क्या मिला यहाँ से, सिंपल थिंग. ए की वैल्यू क्या दी है आपको 1, क्योंकि उन्होंने बोला है ना एक्सेलरेशन इज 1, तो 1. तो मुझे क्या मिल गया, t1 इक्वल टू v. इंपॉर्टेंट रिजल्ट, t1 इक्वल टू v मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ये था ड्यूरिंग एक्सेलरेशन. सो दिस वाज ड्यूरिंग एक्सेलरेशन. इक्वेशन 1 बन गया. सिमिलरली ड्यूरिंग रिटार्डेशन रिटार्डेशन के लिए इज द सेम थिंग. कैसे, उन्होंने बोला है रिटार्डेशन के लिए a इज इक्वल टू v बाई टी टू. वी बाई टी टू क्यों लिखा, देखो लॉजिक क्या बोलता है. मैंने जब मेरे सिटी से चलना स्टार्ट किया, राइट, आई एम एक्सिलरेटिंग, मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गया. अब मैंने डी एक्सेलरेशन स्टार्ट किया, राइट. मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इन केस 1 एंड केस 2 इज सेम. यहाँ पे ग्राफ से भी समझ जाएगा आपको. अगर आप पॉइंट सी पे फोकस करोगे ना, पॉइंट सी इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, है ना. एक्सेलरेशन जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक आई, v तक आई. फिर डी एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, v से स्टार्ट हुआ. डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन v से स्टार्ट हुआ. तो यू विल राइट इट लाइक दिस. बाय द वे, a की वैल्यू 3 है, -3 या 3 लिख सकते हो आप. -3 मतलब आपको सीधे बताएगा दैट there is retardation, मतलब the velocity is decreasing now, but I'll better keep x plus. तो मुझे यहाँ से मिल गया t2 equal to v by 3. Equation number 2. What they have asked you is, उन्होंने आपसे पूछा है minimum time in which the total journey can occur. मतलब आपको पूछा है t1 plus t2, right? So what they're asking you is nothing but t1 plus t2, and what we know is velocity time graph का area under the curve हमको देता है distance. Also, okay, area under velocity time graph gives total distance. Right? If I mark this point as B, the total distance S will be area of triangle. कौन सा triangle? ACD plus area of triangle CDT, CDB. राइट. व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, उन्होंने बोला ही है. उन्होंने आपको बता के रखा है कि 1200 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. हमको टाइम पूछा है और डिस्टेंस दिया है. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, हाफ बेस कितना है, एडी, इनटू हाइट कितना है, हाइट इज डीसी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीबी कितना है, हाफ बेस कितना है, डीबी, हाइट कितना है वापस डीसी. तो 1200 इज इक्वल टू हाफ एडी मतलब t1, ओके, राइट. डीसी इज नथिंग बट v प्लस हाफ db मतलब t2, एंड dc इज नथिंग बट v. तो 1200 इक्वल टू v by 2 कॉमन t1 plus t2.
राइट, बट T1 और T2 तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से निकाल के रखा है. दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 3, लेट अस से. ओके, राइट. सो T1 और T2 की वैल्यू इक्वेशन 1 2 से मिलेगी. सो substituting 1 and 2 in 3, we have 1200 equal to V by 2. T1 is V and T2 is V by 3. So definitely we have to solve this and find out value of V. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ V मिलेगा हमको यहाँ से. तो 1200 equal to V by 2, 3V plus V is 4, 4V by 3, because this cross multiplication है 1 जा 2 जा. So that is 2V square by 3. So V square, 2V square is 3600. Okay, then after solving this, you get basically V square as 1800, and then V is equal to under root of 1800. Okay, okay, तो V आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 1800 एंड अंडर रूट ऑफ 1800 इज 42.4. मैंने ऑलरेडी करके रखा है. राइट, तो आपको अभी क्या करना है, आपको therefore T1 मिल जाएगा. T1 is just V, that is equal to 42.4, and T2 is V by 3, that is 42.4 by 3, and then you will be just adding these two values. तो आपको सिर्फ T1 plus T2, क्योंकि आपको टोटल टाइम पूछा, if I am not wrong, तो T1 plus T2 मतलब 42.4 plus this thing 42.4 by 3, इतना ही करना पड़ेगा आपको. तो T1 plus T2 is equal to 42.4 plus 42.4 by 3. So if you add this, then if you solve this, final answer is 56.5, something like that. तो आपको मिल गया टोटल टाइम. है क्या 56.5? यस, ऑप्शन नंबर डी. तो उस क्वेश्चन को क्या किया हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी एक्सेलरेशन इज एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो a इज इक्वल टू वी बाई टी यूज करके T1 इक्वल टू वी मिल गया, T2 इक्वल टू वी बाई 3 मिल गया. टोटल डिस्टेंस इज एरिया अंडर VT ग्राफ. तो मैंने पहले VT ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया हम लोगों ने. वहां से इक्वेशन मिला हम लोगों को, और वो इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 3. 1200 इक्वल टू वी बाई 2 T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इक्वेशन 1 और 2 से सब्स्टिट्यूट किया, हमको V मिल गया. देन यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ V, we find what is T1 and T2 and then add. That's it. Simple question. Question 24th. A body travels 200 centimeter in the first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of 7th second from the start? Again, question बहुत सिंपल है. आप लोगों को बोला है a body travels 200 centimeter in first 2 seconds. तो what I can do is case 1. First 2 seconds में क्या हो रहा है? I will use S equal to ut plus 1/2 at square. So what I know is S is 200, t is 2 seconds to 2u plus a by 2 2 square. तो ये और ये कैंसल. तो 200 is equal to 2u plus 2a. तो 2 कॉमन u plus a मतलब u plus a is equal to 100 मिल गया आपको. इन शॉर्ट u plus a equal to 100 मिल गया आपको. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली आफ्टर 4 सेकेंड्स, मतलब मैं केस 2 में ऐसा लिख रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग नेक्स्ट 4 सेकेंड, आई एम सेइंग टोटल 2 plus 4 6 सेकेंड्स. तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 6 सेकेंड. मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको. ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको, अगर मैंने ऐसा बोला पहले 2 सेकेंड में ये हुआ, फिर अगले 4 सेकेंड में, तो अगले 4 सेकेंड के लिए थर्ड सेकेंड पे वेलोसिटी पता होना चाहिए. मतलब मैं अभी भी फाइनल वेलोसिटी निकालते बैठूंगा, वो पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करोगे, राइट. वी डोंट नो व्हाट इज a बाय द वे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. इसलिए हम लोग क्या करते हैं,
पहले 6 सेकंड में क्या हो रहा है। अगेन आई विल यूज s इक्वल टू ut प्लस 1/t स्क्वायर। तो इन टोटल 6 सेकंड व्हाट इज s, पहले 2 सेकंड का s, फिर अगले 4 सेकंड का s, मतलब 420, 420। ut पता नहीं था, t पता है 6, u तो पता नहीं है, हाफ at स्क्वायर, दैट इज व्हाट यू हैव, 420 इक्वल टू 6u प्लस 36/2a, मतलब 420 इज इक्वल टू 6u प्लस 18a, राइट। तो 6 का फैक्टर है ये, तो आई कैन जस्ट डू दिस, 6 इंटू 70 इक्वल टू 6 कॉमन, u प्लस 3a, कैंसल कैंसल, तो u प्लस 3a इक्वल टू 70, इक्वेशन नंबर 2। तो यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम डूइंग इज वेरी सिंपल थिंग, आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग। तो 3 में से a गया, 3a में से a गया, तो 2a बचा, ये -30 आएगा। तो a मुझे मिल गया -15, मतलब there is retardation first of all, right? So there is retardation, so you get the value of retardation as this, and the answer is in 6 centimeter per second square. तो a मिल गया। अब when you put this value of a in equation number, let us say 1, in equation number 1, so what you obtain is, you just have to substitute। तो आपको मिल जाएगा u is equal to 100 minus a, minus minus is plus, तो 100 minus of minus is plus, तो आपको मिल गया 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको मिल गया इनिशियल वेलोसिटी u, right? So once you have initial velocity u, once you have value of acceleration, you can find out velocity after 7 seconds। उन्होंने बोला है what will be the velocity at the end of the 7 second। So v7 is equal to u plus at, है ना। तो velocity at the end of 7 second is simple case, you have to just put u equal to 115, a is -15, t is 7, 15 7 za 105. So after solving this, you get 10 centimeter per second। तो velocity at the end of 7 second is 10 है क्या? 10 है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने क्या किया, पहले 2 सेकंड के लिए s निकाल लिया, उस s से मिला u प्लस ए इक्वल टू 100। टोटल 6 सेकंड्स के लिए केस 2 में s निकाल लिया, वहां से मिला हम लोगों को u प्लस 3a इक्वल टू 7। तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a मिला, a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में डाल दोगे तो u मिलेगा। आपके पास u है, आपके पास a है। अब आप जिस सेकंड पे चाहो उस सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर हमने बोला होगा फाइनल वेलोसिटी 100th सेकंड में हो सकता है, हमको 7th बोला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, u प्लस ए टी यूज करेंगे, t की वैल्यू वहां पे हम 7 डालेंगे एंड वी विल सॉल्व इट। so this is how you can solve this question, right? So that is sufficient for the day। We will continue with remaining questions in the next session।